Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel BS Software Engineering Academy. We are going to start lecture series of CS 202 Fundamentals of Front-End Development. In this video we will discuss first lecture of this book. So हम इसको zoom out कर लेते हैं थोड़ा सा so that it will be clearly visible for all of you. So without wasting our time, we are going to start. So first of all, we have to discuss what is front end development. We can say that it's a client side development or practice of producing. We develop front end using HTML, CSS and JavaScript for a website or web application so that user जो है वो interact कर सके with the application or website directly. ठीक है. For this purpose we use three types of languages. Front end languages lives in your browser. फ्रंट एंड लैंग्वेज जो है वो आपके ब्राउज़र में जो भी हमारे ब्राउज़र में हम क्लिक करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करती है. और HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हम फ्रंट एंड को HTML, CSS हम बेसिकली जो है वो डिज़ाइन करने के लिए किसी भी वेबसाइट को उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये we will discuss these HTML and CSS with the passage of time or with in this book very deeply. So first of all, for front end development, front end web development is not a design. It's not a design. Keep in mind is that front end development is not we will do design by using HTML and CSS. Front end developer stand between the designer on one and the back of the developer on the other. जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं वो डिज़ाइनर्स की साइट्स पर होते हैं, मतलब ज़्यादा डिज़ाइन की साइट पर नहीं होते, बस उन्होंने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है. और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपके पास जो होना चाहिए, आप make sure the content is presented as desired. You need to make sure that the content what are you presenting is according to clients requirements. So और उनकी डिज़ायर के मुताबिक हो. all user interaction and handle, जितने भी यूज़र इंटरेक्शंस हैं उनको हैंडल किया गया. सेकेंड हमारे पास है URL. URL आपको आ सकता है, इसका व्हाट इज स्टैंड फॉर URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इट्स अ ग्लोबल एड्रेस फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. गूगल वर्ल्ड वाइड वेब है, उस पर एक ग्लोबल एड्रेस हम इसको कह सकते हैं. और एक URL इज़ वन टाइप ऑफ एक URL जो है is a type of URI. Keep in mind that URL is a type of URI. They can ask as a MCQs, optional questions from you in the objective type. और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर stand for, आपसे पूछ सकते हैं कि URI stand for or URL stand for. So keep in mind these two all the short words or pronunciations. Okay, in the generic term all type of names, generic term में या कोई भी नेम है या एड्रेस है वो क्या है, किसको रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड वाइड पे. ठीक है, and the term web address is a synonym for URL. We can say that URL web address is the synonym for the URL, and that use HTTP and HTTPS protocol. If you here we can see that the examples like HTTP, mydomain.com, the down mydomain / mydomain.com, myresource.html. So when you click on the browser here, it's not a browser, it's a Edge. So let me just open LMS. Like when you click on this, it's a URL. So it's using HTTPS. With some URL it's use HTTPS and HTTP. We will discuss what is the difference between HTTP and HTTPS. ठीक है, parts of URL, different parts of a URL. First,
First one is no. Okay. First one is http mydomain.com my resource. तो हम इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका http, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, और ये इंडिकेट करता है कि हम किस प्रोटोकॉल को इसमें यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है। और mydomain.com रिसोर्स, इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका डाउनवर्ड स्लैश से और http डबल स्लैश से आगे जो हाईलाइटेड है, जिसको अंडरलाइन है, जिसको बोल्ड किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं रिसोर्स लोकेशन नेम है। ये स्पेसिफाई करता है किसी भी IP एड्रेस को या किसी भी डोमेन नेम को जहाँ पे वो रिसोर्स लोकेटेड है, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट जो है ये ऑप्शनल है, मीन टू से व्हेन यू गो हियर नाउ वी आर ऑन लॉगिन पेज, ठीक है। तो अब ये जब हम इसको साइन इन करेंगे, ओके, तो अब यहाँ पे ये देखें होम आ रहा है। फर्स्ट पहले पे लॉगिन था, तब हम लॉगिन पे थे। ये ऑप्शनल होता है, जब हम किसी भी पेज पर जाते हैं तो ये वहाँ पे ये इस होम को ये जो है शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है myresource.html और टिपिकली फाइल नेम या कोई भी सर्वर होता है, ठीक है। और डायनामिक URL है, एक एड्रेस होता है डायनामिक वेब पेज का, और जो डायनामिक URL है वो ओपन कंटेन करता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक क्वेश्चन मार्क एंड करेक्ट और मॉडुलस और परसेंटेज प्लस इक्वल डॉलर साइबिन, ठीक है। और डायनेमिक URL में आप लाइक इसकी एक एग्जांपल है, आपको पूछ सकते हैं कि डायनेमिक URL में किस तरह के सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और fname.sname कोई भी URL आपको दे देंगे और उसमें कहेंगे डायनेमिक URL आइडेंटिफाई करें, तो इस तरीके से आ सकते हैं। और देयर इज़ अ फोर्थ ऑप्शनल पार्ट, अब ये फोर्थ ऑप्शनल पार्ट है क्वेश्चन मार्क या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर साइन के बाद, तो 4 डायनेमिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें पैरामीटर्स सेंड किए जाते हैं इनकी वैल्यू पेयर में, ठीक है। ये उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है जी URL इनकोडिंग, और कैन बी सेंड, जो URL इनकोडिंग है वी कैन सेंड ओवर द इंटरनेट यूजिंग द ASCII कैरेक्टर्स। और जो URL जो है उनमें कैरेक्टर्स होते हैं आउटसाइड द ASCII सेट, और URL हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वैलिड ASCII फॉर्मेट। URL को हम एक वैलिड ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। URL इनकोडिंग रिप्लेस अनसेफ ASCII कैरेक्टर्स, रिप्लेस करती है अनसेफ ASCII कैरेक्टर्स को विद अ मॉडुलस फॉलोड बाय 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के साथ। और जो URL है उसमें स्पेस नहीं होती है, स्पेस कंटेन नहीं करता है। लाइक हम किसी भी चले जाएं तो अगर लाइक हम यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च करेंगे व्हाट इज़ API, ठीक है। अगर ए पे हम करते हैं तो आप यहाँ पे देखें जो हमने टेक्स्ट किया है उसके दरमियान ही क्या कर रहा है, प्लस का साइन यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें स्पेसेस का यूज़ नहीं करता है, तो यही वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो स्पेस के लिए या तो प्लस का साइन यूज़ करेगा या फिर मॉडुलस 20 का यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखता है, लेकिन जो बेसिकली जो है वो प्लस का साइन यूज़ करता है। और HTTP बेसिक्स हैं, स्टैंड फॉर आपको आ सकते हैं HTTP प्रोटोकॉल, HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ से कलर स्कीम, ठीक है। और इट्स एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल वर्क्स एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ये क्या करता है, एक रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के तौर पर काम करता है। और एक फाउंडेशन है ऑफ डाटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड। HTTP क्या है, इस द फाउंडेशन, एक बुनियाद है डाटा कम्युनिकेशन की वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। और इसको हम हाइपर टेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट यूज़, जो हाइपर टेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, लॉजिकल लिंक्स को यूज़ करता है नोड्स के दरमियान जो कि टेक्स्ट कंटेन करती हैं। और HTTP रिक्वेस्ट है, कॉमनली इसके लिए हम 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं,
क्लाइंट एंड सर्वर और वो हमारे पास गेट एंड पोस्ट मेथड है। गेट मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी डाटा जो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है उसको गेट करने के लिए किसी भी स्पेसिफाइड रिसोर्स से या उसकी जो कैन बी कैरी बाय क्लाइंट, और सपोज के लिए हम कोई भी न्यू डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं स्पेसिफाइड रिसोर्स से, और नो लिमिट और नो नेवर कैश। और HTTPS क्या है, HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, MCQs आ सकता है, ये सिक्योर होता है। और HTTP ओवर SL, और HTTP जो है एक सिक्योर वेरिएंट है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वो इनक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड होती है। इनक्रिप्टेड का मतलब है कि वो एंड टू एंड सिक्योर होती है, मतलब उसको जहाँ पे कोई भी उसके लाइक जैसे हम कोई भी हमारे व्हाट्सएप चैट होती है तो वो चैट में शो हो रहा होता है कि वो आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अगर आपको शो करवाऊँ यहाँ पे, इट्स टेकिंग टाइम ऑन लोडिंग, अदरवाइज आई विल शो यू। तो वो आप अगर अपने व्हाट्सएप में कोई भी नया चैट ओपन करके देखें तो वहाँ पे वो आपको शो करवाएगा कि आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मेन टू से वो को सारी बैकएंड पे सारी सेव हो रही है। तो अब जब हम कोई किसी भी व्हाट्सएप का डाटा निकलवाते हैं तो वो एंड टू एंड हमारी कॉल्स वगैरह सारा वो डाटा हमें तो इसका मतलब है कि वो इनक्रिप्टेड, वो सिक्योर है, वो सेव हो रही है पीछे, ठीक है। और वेब सर्वर है, वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो कि यूज़ करता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को सर्व द फाइल्स दैट फ्रॉम वेब पेजेस टू यूजर्स, या जो कि सर्वर्स होती हैं यूजर्स के लिए, और कोई भी रिक्वेस्ट जो सर्वर को भेजते हैं HTTP क्लाइंट्स, और डेडिकेटेड कंप्यूटर्स एंड अप्लायंसेस होते हैं जो उनको रेफर किया जा सकते हैं वेब सर्वर एज वेल, हम उनको कह सकते हैं। लाइक ये जैसे हमारे पास एक ब्राउज़र है, कंप्यूटर है और ये इंटरनेट है, और ये वेब सर्वर से कोई भी रिक्वेस्ट हम भेजेंगे वो इंटरनेट से और वो वेब सर्वर के पास जाएगी, और वेब सर्वर से फिर वो डाटा का इंक्लूड करके तो वो दोबारा उस यूज़र को सेंड करेंगे। एप्लीकेशन सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटेट करने के लिए कि वो क्रिएट जो कोई भी वेब एप्लीकेशन है सर्वर इन्वायरमेंट है उसको रन करने के लिए, और ये एक्ट करता है एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट एक्सेसिबल, कि वो कंपोनेंट्स जो है वो एक्सेसिबल हों डेवलपर्स के थ्रू एन API, जो कि API है उनको डिफाइन किया जाता है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। लाइक ब्राउज़र है, HTTP रिक्वेस्ट, वेब सर्विस, जॉल्स एप्लीकेशन सर्विस, SQL, RDBMS, डेटाबेस के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं। वेब सर्विस क्या है, एक क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन है जो कम्युनिकेट करती हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। www स्टैंड फॉर आपको आ सकता है वर्ल्ड वाइड वेब। और हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। टिपिकली जो कोई भी वेब सर्विस साइट्स है, वेब सर्वर है, XML है, वो कम्यूट करता है मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। और लाइक ये हमारे पास क्लाइंट है, रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने तो वो उसको क्या करेगा, सर्वर को भेजेगा और फिर यहाँ से वो रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स मैसेज फिर इंटरनेट पे आएगा और वो फिर वो क्लाइंट को सेंड करेगा, ठीक है। और वेब एजेंट या यूज़र एजेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हम इनको कह सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके यूज़र्स जो कम्युनिकेट करते हैं वेब सर्वर पर और वो रिट्राइव करते हैं रिसोर्सेज को या डाटा गेट करते हैं। और जो वेब ब्राउज़र है टिपिकली एक एग्जांपल है किसी भी वेब यूज़र एजेंट एप्लीकेशन की। तो ये आपको MCQs आ सकता है कि क्या है वेब ब्राउज़र इज टिपिकली एन एग्जांपल ऑफ वेब यूज़र एजेंट। Domain hosting, FTP, what is domain? Domain is a name of unique name for your website. एक यूनिक नेम होता है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक गूगल है, google.com आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक यूनिक नेम है। अगर आप इसे करेंगे तो कोई दूसरी जो है वो नहीं आएगी आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को भी पता है कि google.com हमारा गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट.com है। और इसके अलावा मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक ही है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट.com है। और टेक्नोलॉजीविजडम.com है, टेक्नोलॉजीविजडम.com आपके पास एक ही है। इसके अलावा facebook.com है, एक यूनिक नेम है ना, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन के लिए कोई भी जो है
एक यूनिक नेम्स हैं। तो डोमेन हम किसी भी यूनिक नेम को कहते हैं। और एक पार्ट है यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि डोमेन किस चीज़ का पार्ट है, तो ये URL का पार्ट है, जो कि डोमेन को बताता है कि जो कोई भी सर्वर जो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक डोमेन नेम सिस्टम DNS स्टैंड फॉर आ सकता है कि रिक्वेस्ट को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, किस वेब पेज पे। तो डोमेन नेम इज़ अ मैप टू API एड्रेस, एक मैप होती है API एड्रेस का जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फिजिकल पॉइंट से इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डोमेन नेम के, लाइक www.com, google.com.pk, facebook.pk, valley.epic गवर्नमेंट। और पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम के कुछ पार्ट्स हैं, लाइक ये .com, .gov, TLD, टॉप लेवल डोमेन स्टैंड फॉर आपको आ सकता है google.com, facebook, एपिक। सेकेंड लेवल डोमेन में क्या आ जाता है कि मस्ट बी या यूनिक ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर एक यूनिक होती है और उसको रजिस्टर किया जाता है विद वन ऑफ द ICANA accredited रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफाइड TLD। और बाकी ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। And hosting, what is hosting? Hosting is a service that run इंटरनेट सर्वर को रन करती है, अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल्स को कि वो सर्व करे कंटेंट को इंटरनेट के साथ। FTP क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर फाइल्स को एक होस्ट से किसी दूसरी होस्ट पर ऑन द बेसिस ऑफ TCP नेटवर्क। और लाइक जैसे हम इंटरनेट के, इसकी एक एग्जांपल है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के तौर पर आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है एज अ FTP, ठीक है। और FTP इज सिंपल एंड सिक्योर। FTP is split into small data packets, जिसको हम क्या कहते हैं, small data packets। I have noticed here one thing, when I highlight yellow color with the blue color, it's going to green. Okay, file is split into small data packets। क्लाइंट सेंड अ पैकेट टू द डेस्टिनेशन, क्लाइंट जो है वो सेंड करता है पैकेट को डेस्टिनेशन पे आफ्टर ओपनिंग एंड अथेंटिकेटेड कनेक्शन। आफ्टर ओपनिंग एंड कोई भी अथेंटिकेटेड कनेक्शन ओपन करने के बाद। और FTP सर्वर है वो चेक करता है कि जो डाटा है वो करेक्ट है, वो सेंड करता है, फिर उस रिक्वेस्ट को नेक्स्ट पैकेट पे, फिर उसको कम्प्लीटली फिल करने के बाद उसको रिसीव करता है। और FTP क्लाइंट क्या है, एक टिपिकली एक सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है कि कम्युनिकेट करे सर्वर और ट्रांसफ़र के दरमियान फाइल यूजिंग FTP प्रोटोकॉल। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिज़ाइनिंग। और from here we are going to start HTML like basics, hypertext। First of all you need to remember stand for HTML, hypertext markup language. It is a standard markup language which we use for creating web pages। We use CSS, JavaScript, or we can say that HTML is a cornerstone technology used to create web pages, जिसको हम web pages create करने के लिए use करते हैं, as well as to create user interface for mobile and web applications। एंड वेब ब्राउज़र जो हैं वो क्या कर सकते हैं, HTML को रीड कर सकते हैं फाइल एंड रेंडर देम इनटू विजिबल और ऑडिबल वेब पेजेस। नेक्स्ट है HTML बेसिक्स है। HTML बेसिक्स अगर आप लोगों ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में रीड आउट किया है CS आई थिंक 101, तो उसमें इसकी बेसिक्स तो उसमें भी डिफाइन थी। तो ऑल HTML मस्ट बी स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है उसको हम डॉक टाइप HTML से डिक्लेयर करते हैं, मतलब मीन टू से यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट है HTML का वो विदाउट डॉक टाइप HTML
से इसके बिना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि डॉक टाइप HTML। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ऐड करना है, देन है HTML, ये इसका हेडिंग टैग है और स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। और एंडिंग टैग क्या है, उसमें डाउनवर्ड स्लैश होगी आपके पास, इस लेस देन साइन के बाद डाउनवर्ड स्लैश होगी और उसके बाद HTML है। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास HTML टैग होता है, इसको क्लोज करते हैं। इस टैग के अंदर हेड टैग होता है जिसके अंदर हम हेडिंग्स राइट करते हैं और ये किस तरह से शो होती हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। बॉडी के अंदर जो भी हम राइट करेंगे वो हमारे लिए विजिबल होगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर वो हमें विजिबल होगा। और H1 लॉगिन जो भी ये H1 टैग है, P टैग है, P हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, H1 हम हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिंस विद, HTML जो डॉक्यूमेंट्स है वो खुद भी एक HTML टैग से स्टार्ट होता है और एंड होता है लेस देन डाउनवर्ड स्लैश और HTML। और जो विजिबल पार्ट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। कैसे नजर आएगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, ठीक है। और इसका हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे इस लेक्चर के लास्ट पे, सो डैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर टू यू। HTML हेडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है आर डिफाइन विद H1 to H6। ये किस तरह से वर्क करती हैं ये भी आपको शो करवाऊंगी। और HTML पैराग्राफ है, पैराग्राफ हम कोई भी पैराग्राफ राइट करने के लिए यूज करते हैं। और HTML इमेजेस है, इमेजेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक इसको आप कह सकते हैं कि हम एक एट्रीब्यूट है। और इमेजेस डिफाइन विद इमेज टैग, किसी भी इमेज टैग को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें सोर्स फाइल होती है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, साइज होता है, विड्थ एंड हाइट होती है, प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट। और एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, HTML एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स आर रिटर्न, उनको हम स्टार्ट टैग और एंड टैग, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे उसका एक स्टार्ट टैग होगा और एक एंड टैग होगा। और जो कंटेंट उनके दरमियान होगा, लाइक जैसे टैग नेम है, फर्स्ट यहाँ पे हम टैग राइट करेंगे। और लाइक जैसे हमारे पास बॉडी टैग था, हेड टैग है, HTML टैग है। तो ये आई होप, मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ें भी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब मैं आप इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी, ठीक है। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना है। और HTML एलिमेंट जो है वो स्टार्ट टैग और एंड टैग, लाइक P टैग है, ये इसका स्टार्ट टैग है और ये इसका एंड टैग है, ठीक है। तो इसके दरम्यान जो टेक्स्ट है ये आपको प्रिंट आउट नजर आएगा। और नेस्टेड HTML एलिमेंट्स है, और HTML एलिमेंट्स को नेस्ट किया जा सकता है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर सकता है, ठीक है। और ऑल HTML डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। और इसकी जो एग्जांपल है, लाइक ये देखें यहाँ पे द HTML, अब ये एक टैग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो इसके अंदर नेस्टेड टैग यूज हो रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे नेस्टेड टैग, यहाँ पे फिर से नेस्टेड टैग यूज हो रहा है। एक एंड टैग है और इसका जो द एलिमेंट कंटेंट अनदर एलिमेंट बॉडी एलिमेंट है, और जो अनदर HTML एलिमेंट है वो बॉडी एलिमेंट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, डॉग टाइप आ गया। और HTML बॉडी हेड 1 है, हेड 2 है, बॉडी है। अब ये टैग, इस टैग के अंदर क्या है, बॉडी टैग है, तो ये क्या है, नेस्टेड है। और बॉडी टैग के अंदर क्या है, H1 टैग है, और बॉडी टैग के अंदर ही P टैग है। तो ये एक दूसरे के अंदर नेस्ट हो रहे हैं। जो बॉडी टैग है, एलिमेंट वो डिफाइन करता है किसी भी डॉक्यूमेंट की बॉडी को, ठीक है। बॉडी टैग हम बॉडी को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और ये स्टार्ट होता है बॉडी टैग से और एंड होता है बॉडी टैग से, उस डाउनवर्ड स्लैश से, ठीक है। इसका भी एंड टैग, अगर इसका एंड टैग यूज नहीं करेंगे तो इसके दरम्यान जो टेक्स्ट लिखा है वो हमें शो नहीं होगा। और द एलिमेंट कंटेंट इज टू अदर एलिमेंट्स लाइक H1 और P टैग से, ठीक है। और बॉडी टैग है H1 डमी टेक्स्ट, मतलब ये जो टेक्स्ट हम शो करवाएंगे हेडिंग है। और
लॉरम एप्सम डॉलर पी टैग, वही हमारे पास पैराग्राफ टैग है। ठीक है, ये वही चीज़ें बताई हुई हैं। H1 डिफाइन करता है हेडिंग को, और H1 इससे स्टार्ट होता है और यहाँ से डाउनवर्ड स्लैश के साथ एंड होता है, और इसका जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है। और पी टैग है वो पैराग्राफ को शो करने के लिए होता है, और इसका स्टार्ट टैग है, एंड टैग है, और कंटेंट है माय पैराग्राफ। डोंट फॉरगेट द एंड टैग। अगर आप some HTML element will display correctly even if you कुछ टैग्स हैं हमारे पास, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने एंड टैग लगाना भूलना नहीं है, इसके बगैर आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम विदाउट एंड टैग के यूज़ कर सकते हैं, और उन एंड टैग को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। और वो कौन से हैं, like HTML elements with no content are called empty elements। या हाईलाइटेड आप लोगों ने इनको साथ साथ करते जाना है। या और जो BR टैग है इसको हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं, लाइक इसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्लोजिंग टैग के। और ये क्यों यूज़ होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और एम्प्टी एलिमेंट्स हैं वो कैन बी क्लोज्ड इन द ओपनिंग लाइक BR, तो हम इसको इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। और HTML doesn't require empty element to be closed। HTML5 जो है वो रिक्वायर नहीं करता है कि वो एलिमेंट्स को क्लोज किया जाए, एम्प्टी एलिमेंट क्लोज किया जाए। बट अगर आप उनको स्ट्रिक्ट वैलिडेशन और किसी भी डॉक्यूमेंट को रीडेबल बनाने के लिए XML प्रेसरी, तो आप उनको क्लोज कर देना चाहिए। और लूज यूज लोअर केस टैग्स। HTML डाटा नॉट केस सेंसिटिव, जो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है, यहाँ पे अगर हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं, केस सेंसिटिव का मतलब है कि एक वर्ड है आपके पास सना, ठीक है, और अगर हम एक वर्ड है आपके पास सना, अब ये वर्ड्स जो हैं दोनों सेम हैं, लेकिन अगर हम लाइक जैसे हमारे पास पासवर्ड होता है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। अगर हमने कोई भी पासवर्ड रखा है 7@123, ठीक है, अगर हम पासवर्ड फील्ड में एंटर करते हैं सना @123, तो एरर मैसेज शो करवाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम जैसे ही इसको कैपिटल करेंगे तो वो उसका एरर सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। जिस तरह से हमने लिखा है, जो कैपिटल है वो कैपिटल में एंटर करें, जो लोअर केस में है उसको लोअर केस में एंटर करे, एक्सेप्ट करे, अदरवाइज एरर शो करवाए, ठीक है। मीन्स द सेम एज, और पी मीन्स हाँ जी, तो अगर हम पी कैपिटल यूज़ करेंगे तो वो हमारा टैग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जो HTML5 स्टैंडर्ड है वो रिक्वायर नहीं करता है कि वो लोअर केस टैग्स, डजंट रिक्वायर लोअर केस टैग। और W3C रिकमेंड्स लोअर केस इन HTML4, पर ये आपके लिए याद करने की चीज़ नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट HTML एट्रीब्यूट्स हैं। HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट जो हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्स के लिए, और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं स्टार टैग से। और एट्रीब्यूट्स कम इन नेम पेयर्स लाइक नेम इक्वल वैल्यू, तो ये हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जो किसी भी लेंथ है एट्रीब्यूट की, द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है कैन बी डिक्लेयर्ड इन द HTML टैग। HTML टैग में हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो लैंग्वेज है उसको डिक्लेयर करते हैं लैंग एट्रीब्यूट से, ठीक है, लैंग कीवर्ड का यूज़ करके। और डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी एप्लीकेशंस के लिए। और ये उसका फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखें डॉक टाइप और HTML, मतलब ये देखें HTML है ना, इस टैग के अंदर उन्होंने इसको जो है यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये HTML टैग है और HTML के अंदर ही उन्होंने लैंग्वेज टैग का यूज़ किया, ENUS व्हाटएवर जो कि। और जो टाइटल है डिफाइन करता है पी टैग को। और एग्जांपल में अगर हम देखें, जो टाइटल एट्रीब्यूट है वो एक पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पी टैग है, माय इसके क्लोजिंग टैग्स माय पैराग्राफ, ये तो ड्यू टू स्पेस। और जो पी टाइटल है, पी टाइटल के अंदर हम पैराग्राफ टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। पी टाइटल इज वेब डेवलपर साइट, W3 स्कूल वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं इसका लर्न करने के लिए। W3 स्कूल
बहुत अच्छी वेबसाइट है, इट्स वेरी हेल्पफुल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। यहाँ से इसके होम पेज पे चले जाते हैं। From here, first tag we have HTML. When you click on this, here we have list like HTML introduction, editors, basic elements, attributes, heading, paragraphs, styles, formatting, whatever you want to learn from, you can easily. Here we have exercise like try it yourself, or HTML example, go to or whatever. Okay. After that, it provides reference covering many aspects of web programming, HTML, CSS, Java, attribute, HTML link इनको हम एंकर टैग इसको हम बोलते हैं, और द लिंक एड्रेस स्पेसिफाइड था HREF एट्रीब्यूट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल लिंक लगाने के लिए अगर हमने कोई भी लिंक यूज़ करना है तो डबल कोटेशन में हम उसको एंकर टैग का यूज़ करते हुए हम उसका दिस इज़ अ लिंक, तो लिंक आ जाएगा। और साइज़ है किसी भी एट्रीब्यूट का डिफ़ाइन करते हैं उसको हम इमेज से, और जो फाइल नेम है वो उसको हम सोर्स कहते हैं किसी भी फाइल नेम का, और उसको इमेज के साथ एंड द साइज ऑफ द इमेज विड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट। एग्जांपल और द alt attribute, it's too much lengthy, I think we need to discuss in another video, and I will also show you all the code with examples। हम इसको एक वीडियो में क्लियर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक अदर वीडियोस को डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करके हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स और विद प्रैक्टिकल में इसको आपको शो करवाऊंगी। तो मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही लेंथी है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद एग्जांपल्स, विद एक्सरसाइज। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।